Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, students of class 8. I am your English teacher here. How are you all? I hope all are you fine. Congratulations to your new class, and it is your first English B class for your new class. As you know, your e-learning classes has been started. Dear students, you are very well aware of the prevailing situation created due to COVID, which all of us are facing. It was our earnest desire to follow the normal procedure of attending the classes in the school, but unfortunately the unfavorable conditions did not allow to materialize the program, and resultantly we had to adopt the source of online system to keep the students in touch with their studies without break. Okay, and now as you know that in our daily routine we call anything through their names, and which words we call them, which words we use to call anything, any person. These words are called noun, and it is your today's topic. To explain your topic, before I would like to show your book. This is your grammar tree, a book for class 8, and it is your grammar book. And in this book, here is your first topic, noun. Noun is our today's topic. As you know from early classes, you aware about the noun, that what is noun. It is very easiest form of noun. We can say noun is the name of any person, place, animal or thing. Mean to say किसी भी चीज़ के नाम को हम noun कहते हैं. Okay, mean to say that if I say what is your name, I can ask you what is your noun. We don't say like this, but we can say. At the moment I am saying these for just for explanation. We don't call this, we don't ask like this, but for explanation we can say that what is your noun. If I ask you what is your noun, definitely you will tell me your name. इसी तरह अगर मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में पूछती हूँ कि इस चीज़ का क्या नाम है, तो वो जो नाम आप जो वर्ड यूज़ करेंगे उसका नाम बताने के लिए, which word you use to explain to call anything, it is called noun. Okay, these are some types of nouns. नाउन को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत ही ईजीएस्ट टॉपिक है ग्रामर का, जो आप अर्ली क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं. ठीक है, नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन. हियर यू कैन सी द चार्ट नाउन, एंड दीज आर टाइप्स ऑफ नाउन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन नाउन. After then, proper noun, countable noun, compound noun, uncountable noun, then collective noun, material noun.
These are different types of noun. There are 7 types of noun. Okay. Noun is a very easy type of grammar. Okay. Now common noun. Common noun अपने नाम से जाहिर है पर्सन और थिंग्स ऑफ सेम काइंड. एग्जाम्पल गर्ल, डॉग, कंट्री. मीन टू से in common noun, for an example, in the class, if I say one girl please come to me, okay, तो गर्ल कोई भी गर्ल उठकर आ सकती है, क्लास में से कोई भी गर्ल उठकर आ सकती है, बिकॉज सारे जो स्टूडेंट्स क्लास में बैठी हैं वो सारी गर्ल्स हैं, बिकॉज गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन. बट इफ आई से any noun, for an example, Sana please come to me. When we say Sana please come to me, तो सना ही उठकर आएंगी, कोई और गर्ल उठकर नहीं आएगी, बिकॉज नाउ आई कॉल अ प्रॉपर नाउन ऑफ एनी गर्ल. गर्ल इज अ कॉमन नाउन एंड सना इज ऑल्सो अ गर्ल, बट नाउ आई कॉल अ पर्टिकुलर गर्ल विच हैज़ नेम सना. Okay, and then country. All of the country in the world are called country because country is a common name. But if I say Pakistan, it means मतलब कि पाकिस्तान कोई और नहीं है पूरी दुनिया में. पाकिस्तान is a proper name. Pakistan is also a country, but now I call its proper noun. Pakistan, America, and Japan, China, these are the proper nouns. All of these are also countries. Okay, country तो वो है, but country is a common name. दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको हम कंट्री ही कह के कॉल करते हैं, बट हर कंट्री का एक पर्टिकुलर नेम है. एवरी कंट्री, ईच कंट्री हैज़ इट्स पर्टिकुलर नेम, एंड व्हेन वी कॉल इट इट्स पर्टिकुलर नेम, इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन, राइट. सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. Proper nouns definition is names of particular place or persons. Example, Islamabad, Rija. Proper nouns always start with a capital letter. It is another important thing that proper noun always start with a capital letter. And common noun we can start to small letter. So Islamabad is a proper noun and its common noun is city. Islamabad is a city, na? Islamabad is a city, but all cities in Pakistan are called cities. But each city has its particular name, like Islamabad, Karachi, Quetta, Peshawar, Faisalabad, etc. Each city has its proper noun and it is called proper noun. So the difference is city is a common noun and Islamabad is a proper noun. Both are cities, Islamabad and city both are cities, but Islamabad and Karachi both are cities. So the city is the common name of both of them, and Islamabad and Karachi is a proper noun, proper name of the cities. Rija is a girl name. Girl is a common name and Rija is a proper name. Okay, and another thing which we have to remember, that proper nouns always start with a capital letter. Now collective noun.
a collection or group of people or things of the same kind. Example, class and herd. कलेक्टिव नाउन देखिए अपने नाम से जाहिर है, या आपको अपने नाम से अपना मतलब बता रहा है. कलेक्शन, कलेक्टिव, कलेक्ट करना. वी से यू इन द क्लास दैट प्लीज कलेक्ट द कॉपीज. वी से ना इन द क्लास टीचर सेज प्लीज कलेक्ट द कॉपीज. तो आप क्या करते हैं? यू कलेक्ट द कॉपी फ्रॉम एवरीवन and then it will make, after collection the copies, it will make a pile of copies, right? Same way, in the same way, class, it is another example of class. There are so many students in the class, like 20, 30, 40, 45, even 50 students in the class. Okay, all these students will make a class, one class. Mean to say, there are so many students in a class and we call it one class. ठीक है? It means that collection of anything or group of people is called collective noun. अब अगर मैं इसको आपको उर्दू में एक्सप्लेन करूं तो आपको मैं एग्जांपल देती हूं कि आप फूल जो है वो तोड़ते हैं. एक गार्डन से आप फूल तोड़ते हैं. जब आपके पास, आपके हाथ में एक फूल है तो वो एक फूल होगा, लेकिन जब आप उन सारे फ्लावर्स को कलेक्ट करके एक बंच की शक्ल में बना देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? बुके. अब उस बुके में चाहे 10 फ्लावर्स हैं या 20 फ्लावर्स हैं या 50 फ्लावर्स हैं, आप उसे एक बुके कहेंगे, एक बंच कहेंगे, बिकॉज we have to collect them and now these things will make in a one type, one form of thing. यही एग्जाम्पल आपका हर्ड का है. हम कहते हैं कि वो एक हर्ड जा रहा है. हर्ड कहते हैं जानवरों के रेवड़ को, ठीक है, जो बहुत सारे एनिमल्स गैदर होके जा रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं. तो अब उसमें जितने भी एनिमल्स हों वो एक हर्ड शो कर रहे होते हैं हमें. जैसे आपको क्लास का एग्जांपल दिया कि एक क्लास, ठीक है, अब उस एक क्लासरूम के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हों, जब उनको कलेक्ट करके एक क्लास की शक्ल दे दी गई है तो हम उसे एक क्लास कहते हैं. ये होता है कलेक्टिव नाउन. इसके और बहुत से एग्जांपल्स हैं, लाइक टीम. देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ टीम बट वी से आर टीम, एक टीम, ठीक है. अब उसके अंदर जितने भी प्लेयर्स हों हम उसे एक टीम कहते हैं. एक टीम, क्योंकि हमने उन प्लेयर्स को कलेक्ट करके एक टीम बना दी है. तो ये कलेक्टिव नाउन होता है. अ बंच ऑफ की, ठीक है, मेरी की चेन यहाँ टंगी है, मेरी की चेन यहाँ रखी है. एक चीज़ हम कंसिडर कर रहे होते हैं उसको, बट देयर आर सो मैनी कीज इन दैट पंच, इन दैट रिंग, इन दैट की चेन. एक की चेन के अंदर बहुत सारी कीज़ होती हैं, लेकिन हम उसे कह रहे होते हैं कि ये मेरी एक की चेन है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम चीज़ों को कलेक्ट करके एक कलेक्शन किसी भी चीज़ की या लोगों का ग्रुप होता है, उसे हम एक कलेक्टिव नाउन उसे हम कहते हैं. हम उसे कोई एक नाम से हम उसे कॉल करते हैं. एक मतलब एक सिंपल अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो बहुत सारी चीज़ों का ग्रुप जो है उसे हम कोई एक नाम दे दें. जैसे बहुत सारे प्लेयर्स को हमने टीम का नाम दे दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने क्लास का नाम दे दिया, बहुत सारे एनिमल्स को हमने हर्ड का नाम दे दिया. ठीक है. नाउ इट इज़ मटीरियल नाउन. नेम ऑफ मटीरियल्स ऑफ सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स. इसका मतलब ये है कि कोई भी मटेरियल जो हम किसी भी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना. जैसे ऑफनली वी से दैट व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ दिस थिंग, कि कोई भी चीज़ है उसका मटेरियल क्या है. सो द मटेरियल विच वी यूज टू मेकिंग एनीथिंग. एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, प्लास्टिक, ब्रॉन्ज. इसमें देयर आर अनदर सो मैनी एग्जाम्पल्स लाइक फैब्रिक, like wood, any other example.
which we use to make anything. It is called material noun. Okay. Now countable noun. Countable noun is very easy because its name help you to understand it. Countable noun. Counting क्या मतलब होता है counting का? Yes, count anything. So we can say things we can count using numbers. Numbers में हम जिन चीज़ों को काउंट करते हैं, एग्जाम्पल्स हैं इसके 3 मैन, आकार, an idea. These may be singular or plural. We can use a or an with them. ठीक है, जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, आपको पता है हमारी लाइफ में, हमारे सराउंडिंग में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होती हैं. सो जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, आपके सामने कुछ लोग खड़े हैं, आप उन्हें काउंट कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 जितने भी हैं काउंटेबल हैं, वो हमने काउंट किया जा सकता है. आकार, ठीक है. एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है. एंड दीज में भी सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं. और आपको पता है एक चीज़ को शो करने के लिए हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, और आर्टिकल कहते हैं ए एन और दा को. तो ए और एन जो है वो हम एक चीज़ को शो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आकार. आकार मीन्स 1 कार. We will not write here 1 car. We say आकार. Okay. After then we will talk about uncountable noun. Okay. Uncountable noun, जैसे कि अपने नाम से वो आपको मीनिंग दे रहा है, uncountable, वो चीज़ें जो हम काउंट नहीं कर सकते. Things cannot count using numbers. वो चीज़ें जो जिन्हें हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, उसके एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं. ऑक्सीजन, मनी, सैंड. दीज डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म. वी डू नॉट यूज़ ए एन विद दैम. हम इनके साथ ए एन दैन जो है वो नहीं यूज़ कर सकते, दैम यूज़ नहीं कर सकते. ऑक्सीजन इज़ नॉट काउंटेबल. सैंड इज़ नॉट काउंटेबल. ये वो चीज़ें हैं which we cannot count. Like water, another example. Water, we cannot count it. And milk, we cannot count it. Air, we cannot count it. These all are uncountable things. Now we talk about compound noun. Compound noun, words made up of 2 more existing words. इसमें ये है कि we use 2 different words which has different meaning, but we together them, when they words together they will make another meaning. Example, here is an example, black and board. Black means black and board means board. ब्लैक बोर्ड जब हम इसको कंबाइन कर देते हैं तो ये हमें एक नई मीनिंग देता है जो हमारी क्लासेस में ब्लैक बोर्ड यूज़ होते हैं. वॉशिंग मशीन. वॉशिंग का मतलब धोना, मशीन का मतलब मशीन. अब इसको वॉशिंग मशीन, हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर मशीन है जिसे हम वॉशिंग मशीन कहते हैं. आर्म चेयर, ठीक है. इसी तरह और बहुत सारे वर्ड्स हैं. लाइक इसका एग्जाम्पल आप यू कैन थिंक अबाउट इट. Another example for compound word, like sun and light. Sun means सूरज, light means रोशनी. When we say sunlight, it means another means धूप, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना. इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप खुद भी सोच सकते हैं इसके बारे में कि 2 अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं जब उसे हम कंबाइन कर देते हैं तो वो हमें एक और मीनिंग जो है वो दे रहा होता है. लाइक स्टार फिश. स्टार इज़ ए स्टार, सितारा जो आसमान पे होता है, ठीक है. और फिश
जो पानी के अंदर मछली होती है, दो अलग अलग चीज़ें हैं ये, बट जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो ये एक पर्टिकुलर फिश का नाम बन जाता है, स्टार फिश। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, सनफ्लावर, सन सूरज को कहते हैं और फ्लावर एक फूल है। अब जब इन दोनों को मिला देते हैं तो सनफ्लावर एक पर्टिकुलर फूल आपने देखा होगा, ठीक है, येलो उसकी पेटल्स होती हैं और सेंटर से वो ब्राउन होता है, वो एक पर्टिकुलर फूल का नाम बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप उन्हें सोच सकते हैं, आप उन्हें सोचें, ढूंढें और उसके बाद टीचर से शेयर करें। ठीक है, आई थिंक कि आपको नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये आपने नाउन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद आपको बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कि हाउ टू मेंटेन योर कॉपी एंड हाउ टू डू योर वर्क इन योर कॉपीज़। ये इसकी एक्सरसाइज आपने किस तरह करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, कॉपी में आपको टाइटल पेज बनाना है, आपको अपनी कॉपी मेंटेन करके रखनी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको इसकी एक्सरसाइज के बारे में बताया जाएगा। आई विल टेल यू हाउ टू डू एक्सरसाइज एंड विच एक्सरसाइज यू हैव टू डन इन योर कॉपी। ओके, any question, if you have any question about this lecture, this class, you can ask me in your group. Okay, we will meet in next class inshallah. Till then, Allah Hafiz and take care. Allah Hafiz.